प्रेज लॉर्ड सबको, जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। आइए मीटिंग का शुरुआत करेंगे। लोना, कैन यू प्रे एंड स्टार्ट द मीटिंग? Yes, Uncle. Dear Heavenly Father, we thank you, O Lord. We thank you for this time, O Father. Thank you, O Lord, that you have helped each one of us, O Father, to gather, O Lord, and come into your presence, O Father God. Thank you, O Lord, for this opportunity, O Father God, where, O Father, we can come, O Lord, because in your presence, O Father, there is fullness of joy, O Lord. And we thank you, O Lord, for everything that you are doing, O Father. Bless each and every person, O Father God. Bless this meeting, O Father God. Let it be a blessing, O Father God, and bring a change in everyone's life, O Father God. Yes, Lord, we thank you and we praise you, O Father. We give this time into your hand. We ask this prayer in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Before we start the praise and worship, I'd just like to read Psalms 96, verse 1 to 13, Bhajan Sahita 96, इसका 1 से 13 वचन. O sing to the Lord a new song, sing to the Lord all the earth. Sing to the Lord, bless his name, proclaim the good news of his salvation from day to day. Declare his glory among the nations, his wonders among all people. For the Lord is great and greatly be praised. He is to be feared above all gods. For all the gods of the people are idols, but the Lord made the heavens. Honor and majesty are before him, strength and beauty are in his sanctuary. Give to the Lord, O families of the people. Give glory and strength. Give to the Lord the glory due his name. Bring an offering and come into his courts. O worship the Lord in his beauty of holiness. Tremble before him, all the earth. Say among the nations, the Lord reigns. The world also is firmly established. It shall not be moved. He shall judge the people righteously. Let the heavens rejoice and the earth be glad. Let the sea roar and all the fullness. Let the field be joyful and all that is in it. Then all the trees of the woods will rejoice before the Lord. For he is coming. For he is coming to judge the earth. He shall judge the world with his righteousness and the people with his truth. So as we praise and worship, let us praise God for his goodness. Let us be reminded of his goodness and all the wondrous works that he is doing in our lives. Let us worship the Lord in the beauty of his holiness and remember that our God is a great God. And as we enter his courts, that we may enter with thanksgiving and praise. So let us together as one family give praise and worship to his name. Can someone also read in Hindi? Is it okay if I read, Uncle? Yeah, please. यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन हो. यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ. यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो. दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो. अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसकी आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है. वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है. उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, और उसके पवित्र स्थान में सामर्थ्य और शोभा है. हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणानुवाद करो. यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मानो. यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है. भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ. पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो. हे सारे पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो. जाति जाति में कहो, यहोवा राजा हुआ है, और जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं. वह देश देश के लोगों का न्याय खराई से करेगा.
आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे, मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करेंगे। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है। वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। Amen. So let us start and our praise and worship. The first song is Yeshu Tu Acha Hai. So let us lift up our voices and praise God. Yeshu Tu Acha Hai. Yeshu Tu Acha Hai. यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जी उठा, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए जी उठा, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए जी उठा, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मुझे चंगा किया, मुझे शक्ति दिया, तू बहुत अच्छा है। मुझे जीवन दिया, मुझे खुशियाँ दिलाया, तू बहुत अच्छा है। मुझे चंगा किया, मुझे शक्ति दिया, तू बहुत अच्छा है। मुझे जीवन दिया, मुझे खुशियाँ दिलाया, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं।
स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, 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 है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा, ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। Yes, Lord. Lord, let this be our prayer, O Father God, that you, Lord, we may decrease, O Father God, and that you may increase in us, O Father God, that our life, O Father God, may give glory to your name, O Father God, and praise to your name, O Father God. Yes, Lord, enable us, O Father God, strengthen us, O Lord, help us, O Lord, to humble ourselves, O Father God, and to boast in you and you alone, O Father God, and not in ourselves, O Father. Yes, Lord, we thank you, O Lord, for this time of worship, O Father God. Yes, Lord, we give this time ahead, O Lord, into your hand, O Father God. Bless the word, O Father God. Bless Joe's uncle, O Lord. Whatever word that will come, O Father God, we pray, O Lord, that help us, O Father, to understand your word, O Lord. You open our eyes and ears, O Father God, of understanding, O Lord, that we may walk in your ways, O Father God, and we may apply it in our lives, O Father God. Yes, Lord, we thank you and we praise you. We give this time into your hand. We ask this prayer in the most precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. 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 Praise God. Thank you, Lona, for leading us in worship. हमें आराधना में अगुवाई करने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। जैसे हम पिछले कुछ हफ्तों से श्वेता पवार के लिए प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने अभिषेक और श्वेता को आशीष किया। पिछले हफ्ते हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। एक मन होके आनंद का समय है। दोनों हेमलता और श्वेता के जीवन में परमेश्वर ने उनके
उनको संतान से आशीषित किया। आइए हम सब मिलकर एक मन होके परमेश्वर को धन्यवाद का भेंट चढ़ाए। कोई भी एक आवाज उठा के प्रार्थना करे। प्रभु जी તમારો આભાર માને છે, તમારી સ્તુતિ અને પ્રશંસા કરે છે પ્રભુ। ખરેખર પ્રભુ તમે મહાન છો, તમે કૃપાળુ છો, તમે દયાળુ છો પ્રભુ। પ્રભુજી અમે તમારો ખૂબ જ આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ પ્રભુ। આજનો આ સમય અમને આપ્યો છે એના માટે પણ તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ પ્રભુજી। પ્રભુજી અમે તમારામાં સદા આનંદિત રહીએ પ્રભુ, એવા તમે અમને આનંદિત કર્યા છે પ્રભુ। આ શું અમે આજે સમાચાર સાંભળ્યા છે પ્રભુ હેમલતાના માટે અને શ્વેતાના માટે, એના જીવનમાં પ્રભુ તમે જે કાર્ય કર્યું છે, એમને જે કંઈ બાળકનું દાન આપ્યું છે પ્રભુ, એના માટે અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ પ્રભુજી। પ્રભુજી બંને દીકરીઓના બાળકોને પ્રભુ અમે તમારા હાથોમાં સોંપીએ છીએ પ્રભુજી, અને એમના માતા પિતાને પણ હાથમાં સોંપીએ છીએ પ્રભુ। તેઓને તમે પ્રભુજી એવી શિક્ષણ આપી પ્રભુ, તેઓ પોતાના બાળકને નાનપણથી તમારી બીક અને તમારા ભયમાં પ્રભુજી તેઓ ઉછેર પામે અને એવું શિક્ષણ તમારામાં વૃદ્ધિ પામતો જાય એવું આપે પ્રભુ। એ માટે તમે એમના માતા પિતાને પણ તમે સહાય કરજો, મદદ કરજો પ્રભુ। નાનપણથી તમારા બીકમાં દીકરો મોટો થાય પ્રભુ, એવું તમે થવા દેજો પ્રભુ। અમે તમારો આભાર માને છે, તમે અમારી પ્રાર્થના સાંભળી છે અને મને ઉત્તર આપ્યો છે પ્રભુ। આ બંને દીકરીઓની ડિલિવરી થઈ ગઈ, એના માટે તમારો પુષ્કળ પુષ્કળ આભાર તથા ઉપકાર માનીએ છીએ પિતા। હવે પછીના સમય તમે હાથમાં સોંપતા પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુના નામમાં માંગે છે, આમીન आमीन आमीन। प्रेज गॉड, प्रभु को धन्यवाद। आइए हम वचन में जाएंगे। आज का वचन प्रेरितों का पुस्तक उसका 5वां अध्याय का अंत 40 वाक्य से। प्रेरितों का पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 40 वाक्य से। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका वचन सत्य है और प्रेरितों का पुस्तक के द्वारा हम जो साथ मिलकर अभ्यास कर रहे हैं, पहला कलीसिया जो स्थापित हुआ, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो आपने स्वर्ग से अपने चेलों के ऊपर उंडेला पिता परमेश्वर, आपका कलीसिया का स्थापना के लिए, कलीसिया चलाने के लिए इस संसार में हमारे लिए एक मार्गदर्शन बना प्रभु। जो भी प्रेरितों का पुस्तक से हम सीख रहे पिता परमेश्वर, हम उस उद्देश्य से सीखे कि हम भी आपके सामर्थ्य को पाकर आपके दिए हुए वरदानों को इस्तेमाल करें और आपका कलीसिया, हम स्वयं आपका कलीसिया बनकर आपको महिमा लाए इस संसार में। यस लॉर्ड, हमारे द्वारा आपका सुसमाचार फैले, लोगों तक आपका प्रेम हम बांट सके, ऐसा हम सबको व्यक्तिगत और एक संगति, एक कलीसिया बना प्रभु। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेरितों का पुस्तक 5वां अध्याय 40 वाक्य से। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलवाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है न रुके। देखिए, परमेश्वर का वचन गंभीर बातें केवल नहीं बताता, परंतु गंभीरता के बीच में हमें थोड़ा आनंद और हंसने का भी एक समय है। एक आनंद से लेने वाला बहुत सारे ऐसे वचन और ऐसे घटनाएं भी परमेश्वर हमें सिखाने के लिए इन वचनों के द्वारा हमें बताता है। 40 वाक्य में हमने क्या सुना? गमालियल, जो पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि गमालियल जो एक व्यवस्था का शिक्षक था और समाज में उनका बहुत बड़ा मान था। ओके,
वो बहुत ही ऊंचा पद का था, लोग सम्मान देते थे। ऐसा याजकों के मंडली में से था गमालियल। ब्रदर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। वॉइस क्लियर नहीं है, एक मिनट। ओके, अभी सुनाई दे रहा है? Yes, brother. यस यस Yes, Clear yes. now? Okay, thank you. क्या बिल्कुल सुनाई नहीं दिया था? मुझे दोहराना पड़ेगा शुरुआत से या कंटिन्यू करें? ठीक है, ब्रेक हो रहा था बीच में। ओके ओके, तो गमालियल नाम का एक व्यवस्था का जो शिक्षक था, एक फरीसी में एक मुख्य स्थान में बैठा हुआ व्यक्ति, जो महायाजकों के उस मंडली में प्रेरितों के विरुद्ध उनको दंड देने के लिए जो महासभा जो वहां पे इकट्ठा हुआ था, उस वक्त सही वक्त पर वो खड़ा होकर बाकी महायाजकों को, उस महासभा के लोगों को कहता है कि इन लोगों को कुछ मत कर, इनको अकेला छोड़। क्यों? सारांश में मैं कहता हूं, क्योंकि यदि ये लोग जो प्रचार कर रहे हैं ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो जैसा बहुत साल पहले थियोदस नाम का व्यक्ति उठ खड़ा हुआ था और गलील का जुदास उठ खड़ा होकर अपना प्रचार या एक एक मूवमेंट चला रहा था, जैसा वे लोग उनका जो मूवमेंट खत्म हुआ, व्हाट डू यू कॉल फॉर मूवमेंट? चलन। सॉरी, उनका जो उद्देश्य था, ये दो लोग, जुदास, गलील का जुदास और थियोदस, जिस उद्देश्य से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा किया और एक मूवमेंट चलाया, कुछ प्रचार किया, लेकिन कुछ समय के बाद उनका कार्य समाप्त हो गया। तो गमालियल इस दो उदाहरण को देकर महासभा के लोगों को कह रहा है कि उसी प्रकार ये यीशु के शिष्य लोग, यदि परमेश्वर की ओर से उनका प्रचार नहीं है, उनका ये कार्य परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो कुछ समय के बाद ये भी समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए इनको अकेला छोड़ो, क्योंकि यदि ये परमेश्वर की ओर से है तो ऐसा न हो कि हम परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा हो। ओके, तो ये इसमें से हम एक बहुत बड़ा सीख हमें मिलता है कि जब भी हम उत्तेजित होकर, यदि हमारे भावनाओं में या शारीरिक तौर पे हम उत्तेजित होकर कुछ करने लगेंगे, यदि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है तो वो ज्यादा नहीं चलेगा। ये आत्मिक चीजों में भी लागू होता है। ओके, परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का प्रचार, सुसमाचार का कार्य भी हम केवल भावनाओं में और जड़ में कर सकते हैं, ये संभव है। लेकिन यदि हम परमेश्वर का कार्य भावनाओं से करेंगे, केवल जड़ से करेंगे, हमारे शारीरिक शक्ति से या हमारे स्वयं के बुद्धि से हम करेंगे, तो वो ज्यादा नहीं टिकेगा। परंतु पवित्र आत्मा का सामर्थ पाकर, उनसे अगुवाई होकर, प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर का उद्देश्य को हम पूरा करेंगे, तो हर तूफान का सामना हो सकता है, हर सताव
से होकर हम विजयवंत होकर आगे बढ़ेंगे। कोई भी प्रकार का दरार आए, परमेश्वर का कार्य नहीं रुकेगा यदि वो परमेश्वर से उत्पन्न होता है तो। ओके, तो मैं यहां पर तुलना किन चीजों का किया? एक बुरा काम और प्रभु का काम, ऐसा तुलना नहीं किया मैंने। प्रभु के काम में ही तुलना होता है। ओके, एक व्यक्ति प्रभु का काम अपने जड़ में भी कर सकता है और दूसरा व्यक्ति वही प्रभु का काम आत्मा का सामर्थ पाकर, प्रभु से, परमेश्वर से अगुवाई होकर, पवित्र आत्मा से अगुवाई होकर कर सकता है। इट इज पॉसिबल फॉर अस टू डू गॉड्स वर्क in our flesh, to do God's work with our own understanding, with our own wisdom. Okay, it is possible. And it is also possible to wait upon the Lord, be filled with the Holy Spirit, the power, and be led by God in all that you are doing for His glory. Okay, so I am not presenting to you a choice between bad works and good works. I am presenting to you choice between two similar godly work. Ministry, परमेश्वर का सेवकाई, हम इस प्रकार से दोनों तरीके से कर सकते हैं, जड़ में और आत्मा में भी। ओके, इसका एक बहुत खूबसूरत उदाहरण उत्पत्ति का पुस्तक में, मैं उस घटना के गहराई में नहीं जाना चाहता हूं, परंतु वहां से कुछ सीख हम लेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक, बाबेल इमारत जो बनाया गया था, which chapter is that? Yeah, chapter 11, उत्पत्ति का 11वां अध्याय। वहां पर उत्पत्ति का 11 अध्याय में वहां पर कुछ लोग इकट्ठा हुए एक समान उद्देश्य से, और उनका उद्देश्य क्या था? बहुत अच्छा उद्देश्य था। ओके, पढ़िए 11 अध्याय, उसका 3रा वाक्य। वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाए। आओ हम ईंटें बनाकर आग में पकाए। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। हाँ, फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले। आओ हम एक नगर और एक क्या बनाए? गुम्मट बनाए। टावर, एक कैन वी से इमारत, एक ऊंचा गुम्मट, मीनार। हाँ, कुतुब मीनार नहीं, उसी प्रकार एक बहुत ऊंचा मीनार, एक बहुत ऊंचा इमारत जैसे। हाँ, आगे। जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इन शब्दों पर गौर करो और मनन करो। आगे पढ़िए। इस प्रकार से हम अपना नाम करें। इस प्रकार से हम अपना नाम करें। ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। ऐसा न हो कि हमें सारे पृथ्वी में फैलना पड़े। ऐसा न हो कि, देखो उनका चिंता क्या है कि हमें फैलना नहीं है, हमें एक जगह पे साथ रहना है। आओ हम मिलकर कुछ करें। क्या ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है? कितना एक अच्छा एकता है उनके बीच में। हम मिलकर, साथ मिलकर कुछ करें। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेट अस कम टुगेदर,
It talks about unity. It talks about a community. It talks about their close relationship, their bonding. Okay, तो कलीसिया में हम सब विश्वासी लोग और अलग अलग परिवार में से हम है, एक कलीसिया का भाग है, और हम सबको बहुत अच्छा लगता है साथ मिलना, प्रभु के गीत गाना, वचन सुनना, हर रविवार को संडे कलीसिया में जाना. इट इज सच अ वंडरफुल टाइम. हम बोलते हैं ना, जरूर ये अच्छी बात है. ओके, आप मुझे अभी काफी समय से आप लोग जानते हो, मैं कलीसिया जाने से विरुद्ध नहीं हूँ, साथ मिलने से विरुद्ध नहीं हूँ, एकता के विरुद्ध नहीं हूँ. लेकिन यहाँ पर मैं कुछ और भाग, कुछ और चीज को दर्शा रहा हूँ, बता रहा हूँ. ओके, जो वचन सिखाता है हमें, वचन का एक सिद्धांत हमें यहाँ पे सीखना है. ओके, साथ मिलना अच्छी बात है, एक मन होना, एकता होना अच्छी बात है. ओके, और उस एकता में आनंद उठाना अच्छी बात है. लेकिन काफी समय के बाद वही संगति, वही एकता हमें एक बहुत आराम दिला सकता है. It can bring within us, in our spirit, a comfort. Okay, एक सुख और विलास, एक बहुत आराम अवस्था हमारे आत्मा और आत्मिक जीवन में ला सकता है. हमें बहुत आराम लगता है उस एसी में जाके बैठना, उस संगति में मिलना, आपस में विश्वासी हम ही वही लोग हैं, वही लोग मिलकर. लेकिन एकता एक तरफ, संगति, एक मन होना अच्छी बात है, वो एक तरफ. लेकिन हमेशा के लिए वो परमेश्वर का उद्देश्य नहीं है कि हम ही लोग हमेशा मिलते रहे सदा के लिए. परमेश्वर चाहता है कि हम फैले, हम सुसमाचार को बांटे. ओके, ये नींव है परमेश्वर का, कलीसिया का नींव है, जो प्रेरितों का पुस्तक में हम पढ़ते हैं. प्रेरितों का पुस्तक में कलीसिया जब स्थापित हुआ, वो कौन से नींव पर स्थापित हुआ? पहला अध्याय का 8वां वाक्य में जो यीशु मसीह कहकर स्वर्ग जाता है, क्या कहकर गया? जब तुम सामर्थ पाओगे, तुम मेरे गवाह बनोगे और केवल यरूशलेम में तुम सदा सर्वदा के लिए मिलते रहोगे. ऐसा लिखा? ऐसा यीशु ने कहा? नहीं. तुम मेरे गवाह बनोगे यरूशलेम, यूदिया, समरिया और पृथ्वी के छोर तक. मतलब यीशु का उद्देश्य, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? कि केवल कलीसिया में मिलते रहना हमेशा के लिए, वो नहीं है. सामर्थ पाकर फैलो, जो नहीं जानता है उनको भी बताओ. स्प्रेड आउट, बी स्कैटर्ड. ओके, और प्रेरितों का पुस्तक में यरूशलेम में, पूरा यरूशलेम प्रेरितों ने, शिष्यों ने यीशु का सुसमाचार से फैला दिया, भर दिया. और भरने के बाद परमेश्वर ने प्रेरितों को, शिष्यों को कैसा तितर बितर कैसा किया? सताव को लाकर. वे लोग सताव का सामना करना पड़ा. they faced persecution, they were beaten up, and that's how they spread. कई बार कलीसिया कुछ मुश्किलों के घड़ी से सामना करना पड़ता है फैलने के लिए. लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा हम इन सताव और मुश्किलों का राह देखकर बैठे फैलने के लिए. जरूरी नहीं है. हम स्वयं यदि इस उद्देश्य से कलीसिया चलाएंगे, यदि हम विश्वासी लोग इस उद्देश्य से जिएंगे कि हम भले हम कलीसिया में मिल रहे, ओके, लेकिन कहीं ना कहीं हमें
परमेश्वर से अगुवाई प्राप्त करके हमें निकलना है, लोगों के बीच में जाना है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हमें मार खाकर या कुछ तकलीफों का सामना करके हमें जाना पड़ेगा। ओके, ये हमें याद रखना है। वो शायद मैंने इस विषय को मैंने ऑर्डर से नहीं कहा। मैंने प्रेरित उत्पत्ति का पुस्तक 11वां अध्याय आपको इसलिए पढ़ने के लिए कहा क्योंकि एक तरफ कलीसिया फैलना है, ओके, कलीसिया लोगों के बीच में जाना है, सुसमाचार बांटना है, एक जगह पर रुक कर बैठना और वहां हमें कंफर्ट होना, ओके, उस जगह का लाभ उठाना। हमें ये जगह बहुत अच्छा लगता है, ऐसा परमेश्वर का उद्देश्य नहीं है। वी हैव टू स्प्रेड आउट, वी हैव टू गो इनटू द अनकंफर्ट जोन्स, ओके, ये परमेश्वर का उद्देश्य है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, यदि हम एक ही जगह पर मिलते रहेंगे, परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने का उस उद्देश्य और दर्शन से हम नहीं जिएंगे, ओके, तो हम ऐसा एक आत्मिक भवन या एक संगति बनाएंगे जो दिखने में आत्मिक लगेगा, परंतु केवल हमारा नाम बनाने में वो पूरा प्रयास होगा। इसके लिए मैं आपको उत्पत्ति का 11 अध्याय पढ़ने के लिए कहा। इस 11 अध्याय में एक प्रकार का आत्मिकता हमें यहां पर दिखाई देता है, एक प्रकार का एकता यहां पर दिखाई देता है। वो एकता क्या है? ओके, दिखने में बाहरी रूप में अच्छा लगता है, ओके, एकता है लोगों में। आओ हम मिलकर कुछ करें, let us come together and do something. That is the call of the people, that is the call. मिलकर कुछ करें और क्या करें, उसमें एक आत्मिकता है। कुछ गलत काम के लिए नहीं मिले उन लोग, ओके, वो आत्मिकता क्या है? हम मिलकर, वहां पे मेहनत दिखता है, वे लोग ईंट बना रहे हैं, ओके, एक बहुत ऊंचा इमारत, एक मीनार को बना रहे हैं जिसका चोटी स्वर्ग तक पहुंचे। ये एक चिन्ह के रूप में है, एक चिन्ह के रूप में इसका अर्थ को आपको समझना है। जिसका चोटी स्वर्ग को पहुंचे का अर्थ ये है कि इन लोगों का, इस संगति का प्रयास क्या है कि हम परमेश्वर का निकट जाए, ओके, स्वर्ग के निकट, परमेश्वर के निकट। बहुत आत्मिक उद्देश्य है, ओके, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य वो नहीं था कि आप एक ही जगह पर रहकर आप परमेश्वर को खोजे या परमेश्वर के निकट आने का प्रयास एक ही जगह में रहकर हमेशा के लिए नहीं। यदि आप पहला वाक्य पढ़ेंगे तो परमेश्वर उन लोगों को क्या किया, नहीं, पांचवा वाक्य पढ़िए। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। देखो, यहोवा वहां पर उतर आया देखने के लिए कि वे लोग क्या काम कर रहे हैं। प्रकाशित पुस्तक आप पढ़ेंगे तो 7 कलीसियाओं को यीशु मसीह कुछ संदेश दे रहा है और वहां पे शुरुआत इस प्रकार से हो रहा है कि यीशु मसीह कलीसिया के बीच में से चल रहा है। क्यों चल रहा है? देखने के लिए कि लोग कैसे है, कलीसिया कैसा चल रहा है, और देखकर यीशु मसीह प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक दे रहा है। तुम लोग में ये कमी है, ये अच्छा है, इसमें सुधारो, मेरा आने का समय निकट है। चेतावनी दे रहा है कलीसियाओं को, विश्वासियों को, ओके। तो वहां पर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह कलीसिया के बीच में से चल रहा है। यहां पर भी हम देखते हैं कि लोगों का एकता के बीच में, मेहनत के बीच में, परमेश्वर के निकट पहुंचने का जो प्रयास और इच्छा है, स्वर्ग पहुंचने का जो इच्छा है, ओके,
वो कार्य और सेवकाई के बीच में यहोवा उतर आता है, और उतर आकर यहोवा क्या करता है? और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। यहोवा ने उन लोगों को सब जगह फैला दिया। और 7वां वाक्य शुरू कैसे होता है? यहोवा कह रहा है आओ हम क्या करें? उनको फैलाए। 4था वाक्य शुरू होता है, मनुष्य कह रहा है आओ हम मिलकर जो ऐसा एक मीनार बनाए जिसका चोटी परमेश्वर के पास या स्वर्ग के पास पहुंचे। ओके, उद्देश्य अच्छा है, लेकिन मकसद अच्छा है। ओके, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य वो नहीं है कि हम एक जगह पे रहे। ओके, इसीलिए परमेश्वर उतर आकर फैला दिया, उनको फैला दिया। ओके, तो यहां पर दो मुख्य विषय उत्पन्न होता है, एक यरूशलेम, दूसरा बाबेल। 9वां वाक्य कहता है, 9वां वाक्य पढ़िए। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा। क्या पढ़ा? बेबीलोन। हाँ, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। देखो, बेबीलोन ये साम्राज्य, उसका नींव यहां पर बन रहा है। ओके, और हम अक्सर क्या सोचते हैं? बेबीलोन अन्य जाति के लोग हैं, या बेबीलोन ऑफ कोर्स उन लोग अन्य जाति के लोग हैं, लेकिन उनका शुरुआत और नींव कहां से हुआ? एक आत्मिक उद्देश्य, एकता। ओके, स्वर्ग की ओर, स्वर्ग के निकट, परमेश्वर के करीब जाना। तो एक जगह पे साथ मिलना। देख आप तो गोयल है ना, थोड़ा सा है, मैंने बिल्कुल दिखा नहीं, देख है इसमें। बेबीलोन जो है, बेबीलोन ये शब्द, ये कोई कोई ऐसा एक समाज हमें नहीं समझना है कि वो एक क्या बोलते हैं, एक आत्मिक समाज नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। ओके, बेबीलोन जो है किस चीज को दर्शाता है? एक प्रकार का आत्मिकता को दर्शाता है। It is a kind of spirituality which has a desire to reach God, has a desire to go to heaven. Okay, which you will see in Christianity. You will see in Christianity. आप मसीह लोगों में देखेंगे कि सभी मसीह लोग परमेश्वर के प्रति एक भक्ति, स्वर्ग जाना है ये इच्छा। ओके, लेकिन ये आत्मिकता के बीच में हमें परखना है कि क्या हमारा आत्मिकता बेबीलोन का आत्मिकता है या यरूशलेम का आत्मिकता है। वो नया यरूशलेम जो परमेश्वर बांधने वाला है, वो एक
जगह पर बैठा हुआ मंडली नहीं है, वो फैला हुआ, सामर्थ पाकर फैला हुआ, एक उद्देश्य से फैला हुआ ऐसा एक आत्मिकता है। परमेश्वर का प्रेम, उनका सुसमाचार बांटने के लिए लोग, नाश होने वाले लोगों के प्रति एक बोझ, ऐसा वाला एक आत्मिकता है। इसीलिए हमें सावधान रहना है कि हमारा आत्मिकता बेबीलोन का आत्मिकता न रहे। It's a very thin line between these two spiritualities. The spirituality that comes from God and the spirituality that arises from man. Both can be seen in Christianity, in the Christian world. Okay? मसीह लोगों में दोनों प्रकार का आत्मिकता हमें दिखाई देगा। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो आत्मिकता, और मनुष्य से उत्पन्न हुआ है वो आत्मिकता। ओके? यदि परमेश्वर से उत्पन्न हुआ आत्मिकता है तो वो वचन से हम अभ्यास करके, सीख कर, ज्ञान बढ़ाकर परमेश्वर में बढ़ते 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 फिर हम फैलने जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, एक जगह नहीं रहेगा। तो हम अपने आप को जांचे। ओके? कई बार मुझे ऐसा लगता है, मैं भी अपने आप को शामिल करते हुए मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के उद्देश्य में नहीं है। हमें परमेश्वर का सामर्थ्य पाकर हमें निकलना है, जाना है। We have to spread out the gospel. अगर ऐसा हम कर रहे तो सही आत्मिकता है। यदि हम केवल चर्च जाकर घर आते हैं, बाइबल स्टडी अटेंड करते हैं, हम खुश है हमारे ही इस संगति में, ओके, वी आर कंफर्ट, वी आर इन अ कंफर्ट लेवल, कंफर्ट जोन, उस चर्च का एसी ऐसा माहौल में हम हमें बहुत अच्छा लगता है। ओके? अगर ऐसा है हमारा आत्मिकता वहां पर सीमित है तो वो यरूशलेम नगर का आत्मिकता नहीं है। नया यरूशलेम जो परमेश्वर बांधने वाला है, जो प्रकाशित पुस्तक में लिखा है, वो आत्मिकता और वो स्पिरिट नहीं है। ओके? बेबीलोन का स्पिरिट है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। और यहाँ पर गमालियल प्रेरितों का 5वां अध्याय का 5वां अध्याय में गमालियल कहता है, चेतावनी देता है महायाजक के मंडली को कि पतरस, यूहन्ना और बाकी शिष्य जिस यीशु का प्रचार कर रहे हैं, यदि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है तो वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। लेकिन यदि परमेश्वर की ओर से है तो ऐसा न हो कि हम परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा रहे। ओके? ऐसा गमालियल ने जब कहा, बाकी लोग, उस महासभा के बाकी लोग सहमत हो गए। 40 वाक्य पढ़िए, प्रेरितों का 5वां अध्याय 40 वाक्य। अब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलवाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। तो एक तरफ बात मान लिया गमालियल का, लेकिन उनका ईगो, कैसे इनको ऐसे ही छोड़ दूं, 2-4 मार कर छोड़ दिया। शायद वे लोग सोच रहे कि हमारा मार खाने से इनके अंदर एक डर आ जाएगा। लेकिन प्रेरितों का प्रतिक्रिया क्या था? 42 वाक्य पढ़िए, 42। वे प्रतिदिन मंदिर में, सॉरी 41 से पढ़िए। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। क्या हमसे ये होगा? ऐसा प्रतिक्रिया, 2-4 मार खा रहे, हम लोग गाली दे रहे, बहुत कुछ दोष लगा रहे, क्या हम हंसते, खेलते, कूदते,
आनंद मनाकर निकलेंगे वहां से? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कभी कभी हम प्रयास करके थोड़ा दिन तक या थोड़े समय तक हम शायद आनंद मनाएंगे, ओके, लेकिन थोड़ा समय के बाद नहीं, अब मुझे सहन नहीं होता, बहुत हो गया। ऐसा एक मनोभावना हमारा होता है कई बार, राइट? लेकिन प्रेरितों का जीवन हमारे लिए एक उदाहरण है, ओके। मार खाने के बाद उस महासभा से कैसे निकले उन लोग? आनंद से, गर्व से निकले। किस बात का गर्व है? यीशु मसीह के दुख के साथ हमें सब क्या हुआ? पढ़िए। हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। उसके नाम के लिए अपमानित होने का योग्यता हमें, घमंड की बात है कि हमें अपमान होना पड़ा। what a contradicting words। भावनाएं, हमारे शारीरिक जीवन और हमारे मन में जो भावनाएं उत्पन्न होता है मार खाने से या गलत दोष जब लोग लगाते हैं, कैसा भावनाएं निकलता है? नफरत या दुख आ, या या कोई ऐसा प्रकार का भावना जो हमें आगे काम करने का मन नहीं करेगा, ओके। लेकिन कितना बड़ा एक सीख हमें इन प्रेरितों से मिलता है। हमें यीशु के लिए मार खाने का एक मौका मिला। वाह, व्हाट अ प्राइड इट इज, व्हाट अ प्राइड इट इज। I pray that God will give us that kind of mind। परमेश्वर हम सबको ऐसा एक मन दे कि लोग जब हमें you know misunderstand, what do you call for misunderstand? गैर समझ। हाँ, गलत फहमी। जब लोगों के मन में हमारे बारे में, हमारे सही काम या अच्छे कामों के विषय में गलत फहमी होता है, ओके, और लोग दोष लगाते हैं। जब हम सही करते तभी, गलत करते हैं तभी जब लोग दोष लगाते, वो हमें हमें पश्चाताप करना चाहिए, क्योंकि गलत काम की वजह से दोष लगा है। लेकिन मैं यहाँ पर अच्छे काम और परमेश्वर ने जो सिखाया वो आपने किया। परमेश्वर ने प्रेम करने के लिए कहा, क्षमा करने के लिए कहा, वो सब आप कर रहे हो और फिर भी लोग आपको गलत समझ रहे हैं और गलत बोल रहे हैं आपके विरुद्ध, ओके। तब हम क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? हमारा सोच को हम किस दिशा में चलाना चाहिए? गर्व के दिशा में। हमें गर्व होना चाहिए, मैंने सही काम किया और मुझे तकलीफ सहना पड़ रहा है। मैंने उस व्यक्ति को घूस नहीं दिया, ब्राइब नहीं दिया, जिसका वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है, मेरा काम पूरा नहीं हो रहा है। प्रभु को धन्यवाद। ये आनंद की बात होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अक्सर मसीह लोग क्या करते हैं, प्रभु मैंने आपके लिए सही काम किया, आपने कहा है, आपने सिखाया है कि कभी रिश्वत नहीं देना, मैं वो कर रहा हूं, फिर भी मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है? हम ऐसा सवाल करते हैं कभी कभी। हम जब रिश्वत नहीं देंगे तब काम नहीं होगा पूरा, ये जानते हुए हमें चलना चाहिए, ओके। जब हम दूसरों को क्षमा करेंगे तब लोग ज्यादा फायदा उठाएंगे, ये हम जानते हुए क्षमा करना चाहिए। आगे क्या होने वाला है ये हमें पता रहना चाहिए पहले से ही, ओके। और आगे ऐसा होगा तो मैं क्या करना चाहिए? मैं आनंद मनाना चाहिए, ऐसा समझकर, ओके। कई बार विश्वास के कारण बहुत कुछ चीज नहीं होता, हमारा काम पूरा नहीं होता पूरा,
कई बार नए विश्वासी लोग विश्वास में आने के बाद उनके जवान बच्चों के लिए विवाह का जब समय आता है, तब उनके पुराना समाज में से लोग सब उनको ठुकराते हैं। ओके, और एक एक मसीह जीवन साथी परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार जब वे कोशिश करते हैं, कई बार बहुत समय तक नहीं मिलता एक विश्वासी जीवन साथी। ओके, लेकिन दूसरी तरफ परीक्षा क्या होता है कि अविश्वासियों का तो लाइन लगा है, बहुत अच्छे अच्छे पद, अच्छे अच्छे सैलरी में जो जीवन साथी के लिए लोग तैयार है, लेकिन अविश्वासी है। ओके, ये परीक्षा अक्सर नए विश्वासी लोगों में होता है। ओके, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें आनंदित होना है जब परमेश्वर के लिए हम एक निर्णय लेंगे कि अविश्वासी में से विश्वासी और अविश्वासी का क्या मिलन। ओके, एक अविश्वासी के साथ हम विवाह या प्रेम के संबंध में नहीं पड़ेंगे। ऐसा जब हम निर्णय लेते हैं, तब कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ता है, लेकिन क्या हम आनंद के साथ वो सामना करेंगे? ये चुनाव हमारे पास है। प्रेरितों के जीवन में यीशु के शिष्यों ने आनंद के साथ सताव सहा। तो सताव हमारे जीवन में अलग अलग रूप से आता है, अलग अलग रूप से आता है। The persecution comes in different forms in our lives. Let us be sensitive in what form it comes, and let us make sure that we will stand for what God has taught us, for the values that He has taught us. Let us stand for that. And if we stand for that, we will face some kind of loss. हमारा नुकसान होगा, निश्चय होगा। प्रेरितों ने नुकसान कैसा सहा? गर्व के साथ। यीशु मसीह के उस दुख के साथ हम सहभागी हो रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि यीशु भी बहुत नुकसान सहा। ओके, और प्रतिदिन वे लोग क्या करने लगे? 42 वाक्य। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से यीशु ही मसीह है न रुके। मार खाया फिर भी प्रभु का काम नहीं रुका। मंदिर में, घर घर में, सब जगह जाकर यीशु का प्रचार करने से वे नहीं रुके। हम सबके सामने एक प्रश्न है, और ये प्रश्न परमेश्वर हमारे सामने रखता है। जो वचन का अभ्यास हमने किया, ये वचन हमारे सामने ये प्रश्न रखता है। क्या है वो प्रश्न? यदि आप और मैं उस क्रूस की कथा पर विश्वास करते हैं, तो क्या हम यीशु जैसा दुख सहा? क्या हम भी तैयार है दुख सहने के लिए, नुकसान सहने के लिए? हमें तैयार रहना है। क्या ये आसान है? नो, आसान नहीं है। कई बार आप शायद गलती कर बैठेंगे, कई बार आप गिरेंगे। प्रभु ने कहा दुख सहने के लिए, परंतु हम कभी कभी बदला ले सकते हैं। वो बदला का भावना जल्दी हमारे अंदर कार्य करता है, नफरत का भावना, और उदास होकर हम विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। ये हो सकता है, लेकिन ये भी परमेश्वर हमें कुछ सिखाने के लिए, ये परमेश्वर का शिक्षण का एक भाग है। जब आप परमेश्वर ने जो सिखाया, वो भावनाओं के बदले में हमारा जड़ का भावना हम कार्य में लाता है, तभी हम मन फिराकर प्रभु हमें क्षमा कर,
हमें ऐसा एक भावना दे, आपका प्रेम से हमें भर कि हम क्षमा कर पाए, हमारे अंदर से डर को निकाल परमेश्वर, ऐसा हम प्रार्थना करें। और हम फिर गिर सकते हैं, फिर हमें उठ खड़ा होना है। ऐसे करते करते एक दिन आएगा जब परमेश्वर हमें हर प्रकार का जो तकलीफ और लोगों का निंदा सहने का काबिल बनाएगा। एक ऐसा मजबूत विश्वासी बनाएगा परमेश्वर हमें कि हम कोई भी प्रकार का निंदा सहने से हमें तकलीफ नहीं होएगा, परंतु हम गर्व महसूस करेंगे क्योंकि हम प्रभु के लिए सह रहे। वो दिन निकट होने दो, वो दिन आने दो, प्रार्थना पूर्वक हम प्रभु के साथ समय बिताए। ओके, उपवास और प्रार्थना में समय बिताए, परमेश्वर से वो सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ को पाए। ये हमारा एक इच्छा हो, एक भूख और प्यास हो हमारे अंदर, वो हम जागृत करें हम सब अपने अंदर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके वचन के सामने हम अपने आप को समर्पण करते प्रभु, और हम जब अपने आप को जांचते प्रभु, इन प्रेरितों के जीवन से जो हम सीखते हैं, जो हम देखते हैं, उससे हम बहुत दूर है प्रभु। पहला कलीसिया के विश्वासी लोगों में जो हम देखते हैं उससे हम बहुत दूर है। पिता परमेश्वर, आप हम सबके अंदर कार्य कर। यस लॉर्ड, एक बहुत बड़ा बेडारी को आप भेज प्रभु, और हम सबको छू प्रभु, ताकि हम आपका राज्य का विस्तार के लिए आपके हाथों में उपयोग हो प्रभु। यस लॉर्ड, दैट वी विल बी यूज्ड in your hands for the extension of your kingdom. Yes Lord, कि आप हमसे गर्व हो प्रभु, और हम आपके लिए निंदा सहने से हम गर्व महसूस करें प्रभु। यस लॉर्ड, पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया के लिए, न्यू लाइफ कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक विश्वासी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम सब जैसा उत्पत्ति का 11 अध्याय में हमने पढ़ा, लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर वहां पर वे संतुष्ट थे, हम ऐसा विश्वासी न बने प्रभु। यस लॉर्ड, हम अनजाने में बाबेल का आत्मिकता को न बनाए प्रभु, परंतु हम उस नया यरूशलेम का आत्मिकता के अनुसार जिए प्रभु, कि आप जो चाहते हैं कि हम सामर्थ पाकर, हम जैसा हर हफ्ते संगति में कलीसिया में मिलते हैं, उस मिलने का उद्देश्य केवल मिलकर संतुष्ट रहना नहीं, परंतु मिलकर फैलना, और फैलकर फिर मिलना, और गवाही में हम आपका सुसमाचार को बांटा, ऐसा गवाही हम बोले। यस लॉर्ड, हम हर जगह पर जाकर सुसमाचार बांटने वाले बने, और फिर लौट आकर संगति में मिलकर उसका आनंद उठाए प्रभु। ऐसा कलीसिया हम बने। पूरे कलीसिया को आप आशीष कर प्रभु, आपके बेडारी को भेज प्रभु। यस लॉर्ड, आपका वचन सुनने वाले हर एक को आज पिता परमेश्वर आप आशीष कर। पिता परमेश्वर, हम कुमार के लिए प्रार्थना करते हैं, और एक साल आपने उसको हर एक उतार और चढ़ाव से लेकर आप आगे बढ़ाए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। ये नया साल आपने उनको देखने दिया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। यस लॉर्ड, पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा का कार्य कुमार के जीवन में हो रहा है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। यस लॉर्ड, उसका भूख और प्यास आपके प्रति जो है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। और भी आने वाले दिनों में आपके प्रति उसका भूख और प्यास और भी बढ़े प्रभु। यस लॉर्ड, काम करने के क्षेत्र में एक गवाही बने प्रभु। पिता परमेश्वर, कुमार और हेमलता दोनों बच्चों, आपने जो बच्चा आशीष किया उनको,
उस बच्चे को आपके मार्ग में वचन के अनुसार वे आगे बढ़ाए, उसके लिए आप उनको तैयार करें प्रभु। यस लॉर्ड, बुद्धि दे परमेश्वर, मार्गदर्शन कर प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुना इसके लिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम कुमार को आशीषित करते हैं। धन्यवाद प्रभु, ये प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। Amen. Praise God. God bless you all. Praise Praise the the Lord. Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Shweta and Abhishek, once again, congratulations. That's Praise the Lord. Thank you. Thank you, brother. Congratulations. Thank you, everyone. Thank you, sister. You're welcome. कैसे हो Welcome. सब लोग? Thank you, brother.